Okay, guys. So this was just to get you started, just to dust off. जिन लोगों ने किया है, चलो मैं भी कर ही देता हूँ. It says display the SSN. Okay, that's pretty straightforward, and it is asking me to display the full name, not like first name last name. It is asking me to display full name from किस टेबल में है ये इन्फॉर्मेशन, वो भी सोच लिया हमने. And we are getting the first names. Now the question was not first name, it wants complete name. The function is concat. Now syntax क्या होगा? First name. I want to concat. Concat stands for concatenation. In layman terms, combine. I want to combine first name, middle initial, L name. ये तीन चीजें चाहिए. क्या इनसे काम हो जाएगा? काम तो हो जाएगा. अच्छा नहीं लगेगा. क्या गलत हो रहा है? कैन यू सी? गलत तो नहीं हो रहा, एलिगेंट नहीं हो रहा. Is there something wrong here? Or maybe try for yourself. Here is the query. Yes, Prasoon, Sanjana, thank you. Exactly. नेम कंबाइन हो गया लेकिन देखने में अच्छा नहीं लग रहा है. How do we mention that? I wanted to concatenate first name, middle initial and last name. I need space in between. और स्पेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोट्स स्पेस कोट, या डबल कोट से भी कर सकते हो. तो मैं कह रहा हूँ एफ नेम के बाद स्पेस डाल दो उसमें, सीधे मिडिल इनिशियल पे नहीं आना. और मिडिल इनिशियल के बाद फिर से एक स्पेस दे दो बीच में, सीधे लास्ट नेम पे नहीं जाना. एंड व्हेन दिस हैपेंस, ठीक है जी, बढ़िया. लेट्स मे बी यूज एन एलियास. Seems good. Okay, next question. This is also a very common query. Very oftenly, we will like to sort things
I want the dataset to be in an arranged manner. For example, salary in ascending order. So it is asking for display ascension. Let's display everything first. अगर सीधे डिस्प्ले करते हैं तो ये इस ऑर्डर में नहीं आते. Now when we need something ordered, the clause is order by. This is something very common, guys. Order by clause. I want to order this data set. Order by salary. And you will see now it is not in some random order. It is sorted by order of salary. It has a part B, the same question, which is क्या होना चाहिए part B क्वेश्चन का? Can you guess? Yes. Yes, Aparna. Of course, ascending order है तो descending भी बता दो कोई. So how to do that? One thing, order by clause, ये तो हमें पता चल गया. By default, order by clause ascending order में लगा देता है ऐसे किसी भी डेटा को. If we want descending order, there is a keyword DESC, desk, for that. When we do that, now the order is, it is क्या बता रहे हैं हम SQL को? Order by something in descending mode. ठीक है, हो गया सबसे? Any problem? Any confusion? Okay. Let's okay. Try a couple of questions by yourself. This is essentially asking you, can there be sorting on multiple columns? Sorting multiple columns पे भी तो हो सकती है. Like यहाँ पर अभी जो आप देख रहे थे, the salary is common for some people. What can be the next level of sorting? Try this one out and let me know when you are done.
Okay, Vasundhara is done. Prasoon, very fine. ओके, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? सेलेक्ट टेस्टिंग, क्योंकि पूरा डेटा ही सॉर्ट करना है, दैट्स वन। फ्रॉम विच टेबल, इट इज वर्क्स ऑन टेबल। पता चली गया हमें, ऑर्डर बाय करना है, ऑर्डर बाय पी नंबर, प्रोजेक्ट नंबर, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट, दैट इज आवर्स। दोनों कॉलम दे दिए, तो दोनों के हिसाब से सॉर्ट कर रहा है। पहली प्रेफरेंस किसे जाएगी? जो पहले लिखा हुआ है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस टू प्रोजेक्ट नंबर। हाँ, प्रोजेक्ट नंबर जब कॉमन हो गया, देन नेक्स्ट प्रेफरेंस गोज टू आवर्स। Try this one. Prasoon, it will give haywire result. If you use and, it will give something haywire. And is just remember, see, there are several keywords. Keywords should be used in uh, keywords जहाँ उसका मतलब बनता है यूज करने का, वहीं यूज करें ना यार। and or, these keywords are made for conditional statements, जहाँ हम where clause यूज करते हैं कि this condition and then that condition, this condition और that condition, तो वहाँ उनका कुछ सेंस होता है। if here I use and, it will make it, I don't know, it will, and you see, किसी का और कुछ लिखा हुआ है, किसी का नंबर कुछ लिखा हुआ है, whatsoever it is, all mess. Okay, for now, question 21. Average project hours. How do you do that? You already know that there has to be a function to calculate average. Select average hours चाहिए, not from works on table, and be done with it. But think about it. Is it the question? क्या यही कह रहा था क्वेश्चन मेरा? यही देखना चाह रहा है कोई? Pay attention to the question once again. It is very short and sweet question. हम कुछ गलत तो नहीं समझ गए हैं इस क्वेश्चन को?
It is asking average project hours. So it is asking average project hours, average hours per se per project. इस टेबल में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है ना, अभी हम जो एवरेज देख रहे हैं वो देख रहे हैं सारे ही प्रोजेक्ट्स पे. So there is another clause which comes in handy for these kind of things. It is called group by. तो अब हम किसे करें, ग्रुप बाय पी नंबर. So let's see P number also, so that पता रहे कौन से के एवरेज आवर्स है. P number and average hours, and what do you see? यस वसुंधरा, ऐसी थोड़ी है, वही नहीं हूं मैं. ठीक है जी, ये हो गया. एंड मे बी एवरेज आवर्स को यू मे गिव सम एलियस if you wish to, average hours, and maybe just to make it beautiful you can order by also. Order by जो भी एलियस आपने दिया है, एवरेज आवर्स. You know, just to make it intuitive. Vasundhara, group by is used for grouping it by categories of some column. When I am saying मेरे को किसी चीज का टोटल देखना है, या किसी चीज का एवरेज देखना है, या किसी चीज का काउंट देखना है. नाउ व्हाट आर दीज? काउंट, सम, टोटल, दीज आर बेसिकली न्यूमेरिक समरीज. एक डेटा सेट को मैं इन अ नटशेल देखना चाह रहा हूँ. नाउ विद इन दैट समरी क्या मेरे को कुछ ग्रुपिंग चाहिए. लाइक अगर मैं ये ग्रुप बाय नहीं देता हूँ, इट विल रिटर्न थर्ड वैल्यू, जस्ट वन सिंगल वैल्यू कि पूरे ग्रुप की पूरे डेटा की समरी इतनी है, पूरी टेबल का एवरेज निकाल करके दे देगा. मेरे को वो नहीं देखना. I wanted to segregate this table according to P numbers. So that is what group by is enforcing here. ठीक है, everybody done? यहाँ तक हुआ सबसे?
A question for you people, do it by yourselves. And apprise me when you are done. If you are done, होना चाहिए ये आप लोगों से. रसून डन, उत्कर्ष डन. यार क्या चल रहा है? 3-4 लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी चाय पीने बैठे हैं. ऐसा मत करो यार. ओके. If you are done with this, here comes another one for you. ये भी होना चाहिए आप लोगों से. अगर नहीं हो रहे हैं तो वो भी बता देना. अगर किसी से नहीं हो रहे हैं, डू लेट मी नो, सो दैट बात करेंगे फिर उसके बारे में. होने तो चाहिए थे. अगर नहीं भी होने हैं तो बता देना, बिल्कुल बेशरम हो गए. बैठे नहीं रहना ऑब्लिवियन में. हो भी नहीं रहा, पता भी नहीं है कैसे होगा.
ओके, सबसे हो गया ये वाला। अगर नहीं हो रहा है तो बता देना कि नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक यू गॉट द पावर ऑफ ग्रुप बाय। दो तरीके हैं इसके करने के। या तो मैं सेलेक्ट करता रहूं दैट आई वांट टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ द सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब दोनों बातें हो सकती हैं, या तो मैं पहले वेयर करूं इसको, वेयर जेंडर इज मेल, और मे बी वेयर जेंडर इज फीमेल, ऐसे ऐसे करके देखते रहें। तो एक बार मेल देखेंगे, एक बार फीमेल देखेंगे, ऐसे इन्फॉर्मेशन दें, और मे बी आई कैन जस्ट, समझ पा रहे हैं आप भाई? या तो मैं फिल्टर करूं इसको, वेयर जेंडर इज समथिंग, फिर दूसरे जेंडर के लिए, बट चलो जेंडर तो दो ही होते हैं, यहाँ तो काम चल गया। व्हाट इफ देयर इज अ कॉलम लाइक प्रोजेक्ट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, जहाँ वेयर देयर आर 10 कैटेगरीज, 20 कैटेगरीज, हर बार फिल्टर थोड़ी करते जाएंगे। So we can directly use group by and be done with it. Now, okay, okay, some fun questions. कैसे होंगे ये? बहुत ही सिंपल। इनफैक्ट बोल चुका हूँ एक बार, कराया नहीं था लेकिन बोल दिया था मैंने। Okay, I see many done here, specifically 5. Guys, you are 10, 12 people here. Please keep me posted. बता दे रहे ना, अगर नहीं हो रहा है तो ये भी बता देना कि नहीं हो रहा है, so that मैं कुछ सोच लूँ फिर उसके बारे में बात करें। ठीक है, बैठे मत रहना। अगर हो रहा है तो भी ठीक है, बहुत अच्छा है। नहीं हो रहा तो उससे भी अच्छा है। बता देना मेरे को कि नहीं हो पा रहा। कराओ, बताओ, जितना भी सिंपल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, शुड वी डिस्प्ले ओनली वन सैलरी?
लाइक द लीस्ट वैल्यू ओनली। हाँ संजना, यही कर रहे हैं, वही पूछा है क्वेश्चन ने। जिसकी सबसे हाई है उसकी सैलरी बता दो, जिसकी सबसे कम है ऐसे की सैलरी बता दो। ओके देवेश, यू आर ट्राइंग बट यू फेल्ड एवरी टाइम। जब मैं टाइप कर देता हूँ ओके ओके ओके, वेरी फाइन देवेश। व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग you are struggling now, that's good. When you are struggling you will succeed also, आने लगेगा। It is just matter of time, it is just matter of practice. Okay, Sanjana says you are done, very fine. देवेश, it is because अभी वो statement complete नहीं हुआ है। statement complete हो जाएगा, select then from then whatever clause you are using। हाँ, ये सब एक लाइन में लिखा होगा तो वो क्रॉस नहीं आएगा। वो क्रॉस इसलिए आता है उसको पता नहीं है कि अगली लाइन में लिखा है को। Okay, if you are done with that, now here comes something tricky। जो रिजल्ट आपने अभी प्रिंट किया, आई वांट देम टू बी प्रिंटेड बाय वन सिंगल क्वेरी। एक ही बार में आ जाने चाहिए, मैं कह रहा हूँ। सेम रिजल्ट, वही जो अभी आपने दो क्वेरी लिखे हैं, अलग अलग लिखे हैं, वही रिजल्ट मैं चाहता हूँ एक ही बार में आ जाए। और ये कोई ट्रिक समझ किसी को? व्हाट इज हैपनिंग है, देखो अभी क्वेरी जो लिखे हैं आप लोगों ने यही तो लिखे हैं। हमसे क्या बोला? मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ऑफ कोर्स,
वेयर जेंडर इज फीमेल, यही तो बोला था जो अभी आपने अलग अलग क्वेश्चन किए हैं। फीमेल्स में मैक्सिमम सैलरी कितनी है वो पूछा था। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, मिनिमम सैलरी, मेल्स में मिनिमम सैलरी कितनी है वो इतनी है, ये भी हो गया। अब किसी ने क्या बोला है कि इन दोनों का रिजल्ट एक ही बार में प्रिंट हो जाना चाहिए। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक क्वेरी से दोनों बातें नहीं आ सकती बिकॉज दोनों क्वेरी डिफरेंट डेटा सेट पे काम कर रही है। डेटा समझो, कौन से डेटा पे काम कर रही है, एम्प्लॉय टेबल वेयर जेंडर इज फीमेल। तो एक तरह से सबसेट हो गया है मेरे डेटा का, इट इज जस्ट अ सबसेट ऑफ माई मास्टर डेटा ऑफ माई एम्प्लॉय टेबल, इट इज अ सबसेट। और ये किसी बिल्कुल दूसरे सबसेट पे काम कर रहा है, देयर इज नो कॉमन ग्राउंड। ये कौन सा सबसेट हो गया, वेयर जेंडर इज मेल। तो दोनों क्वेरी एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट डेटा पे काम कर रही है। ये उस डेटा पे काम कर रही है जहां जेंडर फीमेल होता है, ये क्वेरी उस डेटा पे काम करती है जहां जेंडर मेल होता है, एंड देयर इज नो कॉमन ग्राउंड। समझ पा रहे हो प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसे केसेस में देयर इज अ फैसिलिटी विच इज कॉल्ड, द कीवर्ड इज यूनियन। मैं कह रहा हूं यहां से टर्मिनेशन साइन हटा दिया, अब दोनों क्वेरीज यूनाइट हो गई हैं। मे बी डेटा डिफरेंट हो सकता है, रिजल्ट मेरे को यूनाइटेड चाहिए। So two different queries running on two different subsets of this of data, but the result is united. ठीक है, बढ़िया। ये भी बोल दिया था मैंने कहीं पे, पढ़ नहीं रहे हो इसका मतलब आप लोग। Similarly, there is a keyword intersect, पढ़ के देखना इसके बारे में। ठीक है, पढ़ लेना यार, मैं सब चीजें नहीं कराऊंगा बिल्कुल, आई डोंट वांट टू स्पून फीड यू। एक क्वेश्चन करके दिखाना जरा, हियर इट कम्स। इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, देखिए तो करके।
Okay, Prasun has done it well. Okay, okay. Some of you have already okay done. Very fine. What about क्या चल रहा है देवेश शिवांक सुमित विष्णु संजना यू आर स्लो दिस टाइम ओके करिए करिए ठीक है ओके अगर नहीं हो पा रहा है लेट्स सी हाउ इट कुड हैव बीन डन इट इज asking display the number of employees in each department in increasing order of number of employees. Let's write the query. पहली चीज काउंट की बात हो रही है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट की बात हुई ना maybe let's use an alias which is number of employees
फ्रॉम विच टेबल, कहाँ पर है ये, कौन से टेबल में होगा? ऑफ कोर्स एम्प्लॉय टेबल। नाउ थिंक अबाउट इट, मेरे को समरी क्या देखनी थी, न्यूमेरिक समरी इज काउंट एंड अकॉर्डिंग टू, क्या बोला है क्वेश्चन ने, डिपार्टमेंट वाइज, ईच डिपार्टमेंट। तो लेट्स ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। यहां तक भी बात हो गई। लास्ट में क्या, एक चीज और ऐड की है उसने, क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यानी ऑर्डर भी जरूरी है। मेरा क्वेश्चन कह रहा है ऐसा, ऑर्डर बाय व्हाट, वही जो एलियस दिया है। ऐसे केसेस में एलियस काम आ जाता है। द एलियस वाज नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड एग्जीक्यूट। ओके लेट्स कॉल इट, मे बी डिपार्टमेंट नंबर भी डिस्प्ले करा देते हैं तो पता चलेगा कौन सा डिपार्टमेंट की बात करें। फाइन, आई एम ड्रॉपिंग दिस क्वेरी। ओके संजना, गेट इट डन। ठीक है जी, सॉर्टेड। अनदर क्वेश्चन, try this one guys and tell me when you are done. What do you need Vasundhara? The question अभी ड्रॉप तो किया, number 28. Okay, I'm dropping it again. Maybe you missed. Here it is. If you are done with this 28, I'm dropping 29th again. And maybe we can take a break here. I have dropped two questions, 28 and 29. And if you wish, we can take a quick break of 10 minutes there.
So yes, people, loosen up, freshen up. Fine. Let's resume in 10 minutes. Hi again. Hope everybody is back. ट्वेंटी एट सभी से हुआ. That is pretty much straightforward. Select. क्या बोला है? डिपार्टमेंट वाइज एवरेज. ओके, इट मींस एवरेज ऑफ सैलरी. ये मांगा गया है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. दैट्स आल्सो सॉर्टेड. डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, नॉट सारे एम्प्लॉयज की, यानी ग्रुप बाय डी नंबर. एंड सिंस डी नंबर पता नहीं चल रहा है तो डी नंबर भी डिस्प्ले करा सकते हैं. सीम्स गुड. कोई ऐसा तो नहीं है जिससे 28 नहीं हो पाया. ओह फैंटास्टिक. ऑफ कोर्स. ओके, वांटेड यू टू नोटिस दिस. कंडीशन था यहाँ पर कि सैलरी कम से कम 30,000 होनी चाहिए. सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज की बात करनी है, सारे नहीं चाहिए. वेरी फाइन. यानी ग्रुप बाय डी नंबर तो करना है, लेकिन कब करना है? पहले एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, विच इज वेयर सैलरी इज मिनिमम 30,000. So that means शायद कुछ चेंज हो गए हैं फिगर्स. ऐसा होने से जिनकी 30,000 से कम सैलरी थी वो लोग बाहर कर देने हैं. उसके बाद कैलकुलेशन चाहिए. ठीक है जी, अब ठीक है. अच्छा, जस्ट वन थिंग प्लीज. जब आप चैट बॉक्स में कोई क्वेरी डाल रहे हैं, प्लीज मेक इट वन कंप्लीट मैसेज. ऐसे ब्रेक होकर आएगा, मेरे को समझ नहीं आएगा. फॉर नाउ इट इज ओके वसुंधरा, बिकॉज ओनली यू आर चैटिंग विद मी. नहीं तो बीच में किसी और का टेक्स्ट आ जाता है तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है मेरे लिए. फॉर नाउ इट इज गुड. ठीक है, अब तो हो गया सबसे. अब तो बढ़िया है, यही कर रहे थे. 29 में क्या हुआ?
डिपार्टमेंट वाइज एवरेज देखने तो देख लिए। 29 में क्या हुआ, चलो 29 करते हैं। क्या बोल रहे हैं, डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नंबर ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स विच हैव एटलीस्ट 3 एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज काउंट करने हैं। तो सेलेक्ट डी नंबर, वो तो डिस्प्ले करना ही है डिपार्टमेंट नंबर। काउंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड लेट्स यूज एन एलियस हेयर, अच्छा रहेगा, नम एम बोल देते हैं इसको, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। हाँ जी, कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 3 एम्प्लॉय होने चाहिए, वही डिपार्टमेंट देखना है। तो कंडीशन इज वेयर, जो एलियस हमने उठाया था वही ले लेते हैं, वेयर नम एम इज मिनिमम 3। ठीक है, यही तो बोला। एंड देयर इज प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या गलत हो गया यहाँ पे हमसे, एरर फेंका है उसने। एक चीज तो हमसे रह गई अभी, ग्रुप बाय नहीं किया हमने इसको, हम पूरे डेटा सेट की बात कर रहे हैं। तो लेट्स ग्रुप बाय डी नंबर, तो वो डी नंबर सारे डी नंबर्स के काउंट कर लेगा वो एम्प्लॉय, यही करेगा ये क्वेरी, और काउंट करने के बाद वो डी नंबर भेज देगा जहां पर हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। एंड इट इज स्टिल द एरर। दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन, you know, it gives me opportunity to discuss having clause. Yes, Utkarsh, having। अभी ये क्वेरी काम क्यों नहीं कर रहा है, द प्रॉब्लम इज इसका सिंटैक्स, सिंटैक्स यही फॉलो होगा हमेशा, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय एंड देन ऑर्डर बाय इफ देयर इज एनी ऑर्डर बाय। तो दिस विल बी द सीक्वेंस गाइस। क्या यही रहेगी, हाँ यही रहेगी, कैन वी चेंज इट, नो वी कैन नॉट। लेकिन यहाँ पर ऐसे क्वेरीज में ये काम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम इज हमने बोला सेलेक्ट कर लो डिपार्टमेंट नंबर और काउंट कर दो, काउंट कर दो एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू ग्रुप बाय, जो भी मैं ग्रुप बाय बोल रहा हूँ डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग। तो प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये जो नम एम कैलकुलेशन हो रही है, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्रुप बाय। और सिंटेक्स क्या है मेरा, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय। ये वेयर कंडीशन जो है, वेयर में जो कंडीशन लगनी है वो पहले आनी है ग्रुप बाय से, लेकिन मैं कंडीशन किस पे लगा रहा हूँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे। ये कैलकुलेशन अभी हुई ही नहीं है, समझ पा रहे हो, वेयर के लिए नम एम्प अभी अवेलेबल नहीं है, नम एम्प व्हेन नम एम्प विल एग्जिस्ट, जब ग्रुप बाय हो चुका होगा, और वेयर क्लॉज उससे पहले ही आ गया। तो जब एक कैलकुलेटेड फील्ड पे कंडीशन होती है, अगर यहाँ पर सैलरी होता, कुछ ऐसा होता जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कॉलम, देन इट वुड हैव बीन जस्ट फाइन। लेकिन इट इज अ कैलकुलेटेड फील्ड, ये अभी है नहीं, कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट करेगा कब, जब ग्रुप बाय हो जाएगा। दैट इज वाई वर्क दिस where clause will not work. In such cases, what works is there is a having clause जो ग्रुप बाय के बाद आता है, एंड टर्मिनेट।
हैविंग क्लॉज गिव्स यू लिबर्टी कि आपकी कंडीशन बिल्ट इन फील्ड पे थी या चाहे कैलकुलेटेड फील्ड पे थी. यू कैन यूज इट आफ्टर ग्रुप बाय. एंड नाउ इफ आई डिस्प्ले, यस देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स जहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम से कम 3 हैं. ठीक है, क्लियर, समझ आती है बात. कंडीशन किसी एग्जिस्टिंग कॉलम पे है, वेयर क्लॉज. कंडीशन किसी कैलकुलेटेड फील्ड पे है, हैविंग क्लॉज. ओके, ट्राई दिस वन बाय योरसेल्फ. अभी ग्रुप बाय में 2 चीजें मेंशन करनी है, जरा करके देखिए तो. Okay, Utkarsh, soon have done. What about else? Others done with it or no? Okay, okay. Prasoon, Utkarsh, Sanjana, just drop your code. जो भी आपने लिखा है query. Let's see what you have done.
Okay, plus one by far. This is good. Okay. Very well, Sanjana. Utkarsh, nothing wrong in your query. You are still seeing the result, and result is good enough. ठीक है. One thing I like to mention, संजना प्रसून दोनों ही ऑर्डर इस तरह से चेंज नहीं होना चाहिए. It was department wise and then gender wise. You both have changed the order. You can see that in the result. Utkarsh has done it just right. Utkarsh, one thing to add to your query, that will be like ग्रुपिंग कहाँ कहाँ चाहिए थे, डिपार्टमेंट वाइज और जेंडर वाइज. तो ग्रुपिंग आपने ठीक किया, लेकिन डिस्प्ले में सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर कर रहे हो. इट इज ऑलवेज गुड कि क्वेरी में जो जो चीजें पूछी गई हैं वो हम डिस्प्ले में ले आए हैं. So select D number, average salary, that is fine. Maybe you should use alias also. It looks good, and display gender also. So that will make this query complete. Okay, fine. Another question. Here in the chat box. Now this is the question. जहाँ इंटीग्रेशन की बात सॉरी जहाँ पर इंटीग्रेशन की बात हम कर रहे थे, that this data set should be an integrated repository. इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, डिस्प्ले करना है फर्स्ट नेम which is in employee table and condition is on department which is in department table. ऐसा ही हो रहा है ना. Now it has become problem of two tables, employee table, department table. फर्स्ट नेम यहाँ से लेना है, कंडीशन कहाँ है, डिपार्टमेंट नेम पे, रिसर्च वाला डिपार्टमेंट चाहिए. मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, एक टेबल से काम चल जाए. ठीक है, that's where now we have to join these tables. We need integration of tables here. So let's not worry about select for now. From मैं क्या बोल रहा हूँ, एम्प्लॉय टेबल वो तो है ही. I wanted to join with which table, department table.
एंड ऑन व्हाट बेसिस? हाँ जी, किस बेसिस पे ज्वाइन हो सकते हैं दोनों दोनों टेबल? क्या कोई कॉमन ग्राउंड है इनमें? दोनों टेबल्स में डिपार्टमेंट नंबर इज द कॉमन ग्राउंड, वही एक कॉमन कॉलम है, करेक्ट? यस, कॉलम नेम्स आर डिफरेंट उत्कर्ष, लेकिन वैल्यूज तो वही है ना। मेरे को अगर ये दोनों बातें ज्वाइन करनी है, मैं इसी बेसिस पे तो कर पाऊंगा कि हाँ यार, यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 5 दिखा रहा है इस आदमी का, तो ये डिपार्टमेंट नंबर 5 कहाँ से मैं उठा लूँ? यहाँ से उठा लूँ तो पता चल जाएगा डिपार्टमेंट का नाम क्या था, इसका मैनेजर कौन था, डेट क्या थी, सब चीजें। नेम डिफरेंट है, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट फॉर नाउ, लेकिन ये लॉजिक समझा, ज्वाइन ऐसे होंगे। तो ज्वाइन कर लेते हैं, हम वही बता रहे हैं यहाँ पर कि कॉमन ग्राउंड क्या है। तो आई एम मेंशनिंग इट लाइक, हाउ डू यू मेंशन इट? एम्प्लॉय डॉट, और इस टेबल में इस कॉलम का नाम क्या था? डीनो, ठीक है? सिंटेक्स समझ रहे हो? एम्प्लॉय डॉट डीनो, टेबल डॉट कॉलम, ओके? डिपार्टमेंट डॉट डीनम एंड टर्मिनेट। Had it been select asterisk, सिंटेक्स समझ रहे हो? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम विच टेबल। अब यहाँ पर एक सिंगल टेबल नहीं है, इट इज अ जॉइंट टेबल। आई हैव जॉइंड एम्प्लॉय विद डिपार्टमेंट ऑन व्हाट कंडीशन? दैट एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट कॉलम इज इक्वल टू डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर कॉलम। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग? अच्छा, डी नंबर है, नॉट डी नम। ठीक है जी, सेलेक्ट एस्ट्रिक करने से क्या हुआ है, दोनों टेबल कंप्लीट कंप्लीट ज्वाइन हो गए हैं। अब सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास दोनों टेबल की एक मास्टर टेबल में अवेलेबल है। शायद इसी को हम इंटीग्रेटेड रिपोजिटरी बोल रहे थे, दैट मल्टीपल टेबल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन मास्टर टेबल। अब आ जाओ, क्या बोला था हमसे? सेलेक्ट एस्ट्रिक नहीं करना, नहीं करते। हमें क्या बोला है? एफ नेम फ्रॉम दिस टेबल। अब मेरे पास ये सारा डेटा एक ही जगह अवेलेबल है, तो फ्रॉम क्लॉज कंप्लीट हो जाता है। और अब सिंस मेरे पास ये एक मास्टर टेबल बन चुका है, यहाँ पर मेरी कंडीशन काम करेगी। कंडीशन कहाँ थी? दूसरे टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल में, लेकिन अब तो वो यहीं पर है। द कंडीशन वाज डी नेम, डिपार्टमेंट नेम शुड बी इक्वल टू रिसर्च। यही था ना? हाँ, रिसर्च। ठीक है जी, सॉर्टेड। हो गया सब लोगों से?
ओके, एक क्वेश्चन करके देखेंगे आप लोग। तो दिस वाज अ टू वे ज्वाइन, इसको हम बोलते हैं टू वे ज्वाइन, यानी दो टेबल्स ज्वाइन कर रहे हैं। देयर कैन बी अ मल्टी वे ज्वाइन आल्सो, थ्री टेबल्स, फोर टेबल्स। सिंटेक्स यही रहेगा, दिस टेबल ज्वाइन दैट टेबल ऑन दिस कंडीशन, देन ज्वाइन थर्ड टेबल ऑन व्हाट कंडीशन, एंड सो ऑन। एक क्वेश्चन करके देखिए तो वो पता है क्या आपसे। Anybody, what happened, not happening? क्वेश्चन समझो, पहले प्रॉब्लम समझो। क्या बोला है, नेम ऑफ ईच एम्प्लॉय एंड नेम ऑफ देयर प्रोजेक्ट नेम। ओके, सेलेक्ट, क्या क्या चाहिए, एफ नेम, मे भी, चलो एल नेम भी ले लो, पूरा ही नाम करा देते हैं। और क्या चाहिए, प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम अगर हम देखें, प्रोजेक्ट नेम इज अवेलेबल इन वेयर, इट इज कॉलम पी नेम इन टेबल प्रोजेक्ट। पी नेम, ठीक है जी, सेलेक्ट तो ये करना था, ये सब बातें डिस्प्ले करनी है। फ्रॉम विच टेबल, ये कौन से टेबल में मिलेगा, एम्प्लॉय टेबल में फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिल जाएंगे, बट एम्प्लॉय इज नॉट इनफ, लेट्स जॉइन इट विद विच टेबल। प्रोजेक्ट नेम कहाँ है, पी नेम, पी नेम इज इन प्रोजेक्ट टेबल। क्या कोई कॉमन ग्राउंड है एम्प्लॉय टेबल और प्रोजेक्ट टेबल में, है क्या, नहीं है, ऐसा कोई कॉलम नहीं है जो एम्प्लॉय टेबल में और प्रोजेक्ट टेबल में कॉलम हो। हाँ, आई वॉज अबाउट टू कम ऑन टू दैट। डी नंबर,
लेकिन इससे गलत क्या होगा? सी गाइस, क्वेरी बिल्डिंग इज नॉट इनफ, देयर विल बी ट्रिकी क्वेश्चंस। मैं बताता रहता हूँ जैसे जैसे आता है। अब यहाँ पर क्या ट्रिक था, आपसे क्या बोला है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि एम्प्लॉय, कौन सा एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो बताओ। बात ये हो रही थी, आप क्या कह रहे हो कि इस डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट कौन सा प्रोजेक्ट चलाता है। फर्क है दो बातों में, समझो। सपोज दिस इज अ प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट एक्स, दिस इज वन प्रोजेक्ट। मान के चलते हैं इट इज ओन्ड बाय, दिस प्रोजेक्ट इज गवर्न्ड बाय से मार्केटिंग टीम, मे बी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, दिस एग्जांपल बिकॉज आई हैव डन दैट माई सेल्फ। दिस इज अ प्रोजेक्ट विच इज बीइंग रन बाय मार्केटिंग टीम, मे बी वो किसी एरिया में कैंपेन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम एनालिटिक्स डिपार्टमेंट, मे बी। एंड येट आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। अरे हो सकता है कि नहीं, समझ रहे हो? मतलब टेबल को मत देखो, इसको जस्ट एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ। मे बी एक मार्केटिंग टीम आगरा में कोई प्रोजेक्ट रन कर रही है, वो लोग अपना कैंपेन कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, समथिंग समथिंग। एंड मे बी आई एम फ्रॉम एनालिटिक्स डिपार्टमेंट, येट आई एम वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर सम रीजन। उनको डेटा एनालिसिस करके देना है, कस्टमर से इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, कुछ तो भी। आई होप इट इज क्लियर, समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है जी, फिर क्वेश्चन। ओके, फिर और क्या तरीका हो सकता है, और कोई तरीका हो सकता है क्या, कुछ सोच पा रहे हो? नाउ एक्चुअली थ्री वे ज्वाइन चाहिए होगा आप लोगों को। हाउ कैन आई बी सर्टेन यहाँ पर मेरे को अगर एसएसएन से मैच कर लूं कि ये एसएसएन, और वर्क्स ऑन टेबल में क्या पता है मेरे को कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट नंबर पे काम करता है। अभी डिपार्टमेंट का चक्कर नहीं है, यहाँ मेरे को सर्टेनली 100% मेरे को मालूम है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट नंबर पे काम करता है। और जब प्रोजेक्ट नंबर पता होगा तो प्रोजेक्ट नेम हम पता कर लें। ठीक है, सो इट इज अ थ्री वे ज्वाइन नाउ। यस प्रसून, यही तो बात हो रही थी अभी, यही तो गलत हो रहा है जो आपने डाला है। दिस डिपार्टमेंट नंबर डज नॉट मीन कि ये एम्प्लॉय, इसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज काम करेंगे इस प्रोजेक्ट पे, नॉट नेसेसरीली। देयर मे बी एम्प्लॉय फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट हु इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। चलो क्वेरी बनाते हैं, फंडा समझ गए। लेट्स जॉइन एम्प्लॉयज ऑन वर्क्स ऑन, एंड ग्राउंड क्या रहेगा, ग्राउंड क्या रहेगा, एम्प्लॉय डॉट एसएसएन, या वन मोर थिंग, अगेन इसको भी एलियस ही कहते हैं,
रिमेंबर हमने बात की थी कि मैं कॉलम के भी एलियस हो सकते हैं, टेबल के भी एलियस हो सकते हैं। सो आई एम क्रिएटिंग एलियस फॉर एम्प्लॉय। हर बार मेरे को एम्प्लॉय वर्क्स ऑन नहीं लिखना। आई एम सेइंग एफ नेम, एल नेम, पी नेम ये चाहिए, एम्प्लॉय एज ई, ज्वाइन विद वर्क्स ऑन एज डब्ल्यू। एंड नाउ कंडीशन लिखने के लिए आई विल जस्ट हैव टू टाइप ई द एलियस। ऑटो सजेशन में आने लगा ना टेबल ई। और क्या है टेबल ई? टेबल ई वही है जो एम्प्लॉय टेबल थी। डब्ल्यू डॉट ई एस एस एन, यही कॉमन कॉलम है दोनों में। तो ये तो हुई वर्क्स ऑन और एम्प्लॉय टेबल ज्वाइन। लेट्स ज्वाइन। अब ये जो रिजल्टेंट टेबल आया है, दो टेबल ज्वाइन करने के बाद जो रिजल्टेंट टेबल आया है उसमें भी मैं कह रहा हूँ आगे ज्वाइन दिस ऑल्सो विद समथिंग, विद व्हाट? प्रोजेक्ट टेबल। प्रोजेक्ट टेबल लेट्स कॉल इट पी ऑन द कंडीशन दैट, हाँ जी क्या कंडीशन रख सकते हैं? वर्क्स ऑन टेबल में एक कॉलम था पी नंबर, दैट शुड बी इक्वल टू पी टेबल पी नंबर कॉलम। हाँ आई रन इट वंस अगेन। मेरे क्वेश्चन ने क्या बोला था? हर एम्प्लॉय का नाम बताओ और वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ठीक है जी, यही बोला था। हमने बोल दिया एफ नेम, एल नेम, पी नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम। प्रॉब्लम क्या आया? ये सारी इंफॉर्मेशन किसी एक टेबल में अवेलेबल नहीं है। सो आई हैव टू जॉइन टेबल्स। नाउ व्हिच टेबल्स शुड आई जॉइन? आई एम जॉइनिंग एम्प्लॉय टेबल with works on table on a common condition that employees SSN column is equal to works on ESSN column। अब कॉलम नेम डिफरेंट है, वो तो होंगे, ठीक है। यही किया है, कुछ खास नहीं किया है। यहाँ पर बस एलियस और मैंने ज्वाइन किया है, एलियस यूज किया है बिकॉज मेरे को बार बार ये पूरा पूरा एम्प्लॉय डॉट एस एस एन, वर्क्स ऑन डॉट एस एस एन ये सब चीजें नहीं करनी थी, तो एलियस यूज कर लिया। आई एम कॉलिंग इट जस्ट ई, वर्क्स ऑन इज जस्ट डब्ल्यू। ये दो टेबल ज्वाइन हो गई, उन्हीं को कह रहा हूँ अब तीसरी टेबल भी ज्वाइन कर दो इसमें, विच इज प्रोजेक्ट टेबल। तो मेरे को जो तीन चीजें डिस्प्ले करानी थी, अब जो मास्टर टेबल बनी होगी इन तीन टेबल्स को ज्वाइन करके, फिर तक क्वेरी। एलियस से कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? वसुंधरा, व्हाट इज द कंफ्यूजन? एलियस? वेल डोंट यूज इट इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज। अच्छा, वर्क्स ऑन इज कंफ्यूजिंग यू? Works on I am using because see there is no direct way to join employee with project। अभी हमने सोचा था ना इसको कि डी नंबर पे हम कंबाइन करते हैं, अगर इनको अगर डी नंबर पे ज्वाइन करते हैं इन दोनों टेबल को तो बात बन जाएगी। बात नहीं बनेगी, गलत हो जाएगा। अभी सोच रहे थे ना इस बात को।
तो और कोई कॉमन ग्राउंड ऐसा है नहीं कि मैं सीधे सीधे एम्प्लॉयज को ज्वाइन कर दूं प्रोजेक्ट टेबल पे। तो हमने दूसरा तरीका सोचा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हाँ, ये सर्टेन तरीका है कि अगर वर्क्स ऑन को ज्वाइन कर लूं मैं एम्प्लॉयज, ठीक है, दैट सिंस यहाँ पर ESSN गिवन है, यहाँ पर कॉमन ग्राउंड SSN है, तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि अगर इसका SSN है और इस SSN के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर लिखा है कि ये इस प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो नाउ दिस सीम्स वेरी मच सर्टेन। अब मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। डिपार्टमेंट नंबर में कंफ्यूजन हो सकता था, तो वर्क्स ऑन टेबल ज्वाइन कर ली। अब वर्क्स ऑन ज्वाइन कर ली तो मेरे को P नंबर तो पता चल गया कि प्रोजेक्ट नंबर, कौन सा एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट नंबर पे काम करता है। मुझे नंबर नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए था प्रोजेक्ट नेम। उसके लिए फिर प्रोजेक्ट को ज्वाइन कराया, यही किया है। So this means that we can join multiple tables like this because like इसमें तो बहुत ही कम tables हैं, लेकिन if there would be like um, यस देयर more कैन and बी। more tables, हाँ हाँ, then we have to like यस देयर कैन बी। so it means that it can be more, like we have to relate it. Like यस if we are not finding any relation, then it can be like 3 tables, 4 tables like that. करेक्ट, देयर मे बी मल्टीपल जॉइंट्स, मल्टी वे जॉइन वही है। Okay. ठीक है, दिस वे यू कैन जॉइन 10 टेबल्स इफ यू विश टू। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? क्लियर है ये? ओके। जो मास्टर टेबल बनेगी उसमें 2 कॉलम डुप्लीकेट हो जाएंगे। अच्छा हाँ, यस, 2 कॉलम्स आएंगे उसमें। फ्रॉम टेबल 1 जो उसमें कॉलम नेम होगा, फ्रॉम टेबल 2 जो उसमें कॉलम नेम होगा। हाँ, 2 कॉलम आ जाएंगे। फिलहाल उसकी चिंता नहीं है, बिकॉज काम चल रहा है हमारा, क्वेरी सॉल्व हो गया, उसकी भी टेंशन लेंगे कभी। ट्राई दिस वन, देखिए तो करके, सोचना आराम से क्या लिखा है क्वेश्चन, क्या देखना चाहता है ये।
हाँ जी, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें अभी कुछ नहीं करना ज्वाइन वगैरह। कहाँ फंस गए? यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई टेबल। रिमेंबर रिमेंबर, सीक्वेंस में चलो गए। सबसे पहले टेबल आइडेंटिफाई करोगे, जो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो किस टेबल से मिलेगी। एक से नहीं मिल रही तो ज्वाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं हिल रहा क्या? क्या हो गया? देखो ना, लीस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात कर रहा है, काउंट की बात हो रही है यानी कि एसेंशियली। तो लेट्स काउंट नंबर ऑफ रोज। कौन सी टेबल से मिलेगा डेटा? भाई कहाँ पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट पे कौन आदमी काम कर रहा है? कौन सी टेबल में पता चल रहा है? किस प्रोजेक्ट पे कौन आदमी काम कर रहा है, ये कौन सी टेबल से पता चल रहा है हमें डेटाबेस में? हाँ, वेरी मच सॉर्टेड। वर्क्स ऑन टेबल, एक ही टेबल ऐसी दिख रही है, फ्रॉम वर्क्स ऑन। ये भी बात खत्म हुई। आगे क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट्स विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, तो प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू लो पी नंबर। लीस्ट नंबर की बात कर रहा है, ऑर्डर बाय करते हैं अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम वाला अपने आप सबसे ऊपर आ जाएगा। सिंपल। अगर काउंट को एक एलियास दे देते हैं, से मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, एम काउंट, तो ऑर्डर बाय एम काउंट, और बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, तो सबसे कम एम्प्लॉय वाला डिपार्टमेंट सबसे ऊपर आ जाएगा। सबसे प्रोजेक्ट जो भी आएगा। ठीक है, हो गया डिस्प्ले, यही चाहिए था।
प्रोजेक्ट पता नहीं चल रहा तो पी नंबर कर लेते हैं। चलो, पता चल गया कौन से प्रोजेक्ट पे कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। एंड वन थिंग विच आई वांटेड फॉर विच आई मेंशन दिस क्वेश्चन इज, इट इज वर्थ मेंशनिंग। हमने क्या बोला, आप कह रहे हो मेरे को बस लीस्ट वाला चाहिए, मेरे को बाकी सारे नहीं देखने हैं। ये तो पूरी टेबल है, असेंडिंग ऑर्डर में है, जो सबसे ऊपर होगा वही लीस्ट एम्प्लॉय वाला होगा, चलो मान लिया, लेकिन मेरे को बाकी देखने भी नहीं है। तो हाउ डू वी से, किसी भी उसमें रिजल्ट में हम ये कर सकते हैं, वी कैन से हाउ मेनी रिजल्ट्स यू वांट टू सी। सो द क्लॉज इज लिमिट। इफ आई से लिमिट इज 1, यानी जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है, इससे ऊपर जो कुछ भी लिखा है, उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है, लिमिट इट टू ओनली वन ऑब्जर्वेशन। मेरे को सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन देखनी है, पहले वाली। सो दैट इज द प्रोजेक्ट नंबर विद लीस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। आपसे बोले कोई टॉप 3 देखने हैं, लिमिट 3। टॉप 5 देखने हैं तो लिमिट इज 5, एंड सो ऑन। ठीक है जी, बढ़िया। तो दिस इज लिमिट क्लॉज। बहुत भारी काम आ जाता है, क्वेश्चन भी हो जाता है, कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि मेरे को पूरा डेटा नहीं देखना, मेरे को तो टॉप 10 रिजल्ट देखने हैं। टॉप 10 देखने हैं, बहुत अच्छी बात है। ऑर्डर बाय इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सारे मैक्सिमम वाली चीजें ऊपर पहुंच गई होंगी। एंड आई जस्ट वांट टू सी द 10 रिजल्ट्स। टॉप 10 खत्म हो गया। सर यस देवेश। पर इसमें तो देखिए हमने इसमें मैनुअली करा, हमारा जो आपने ये सवाल लिखा था इसमें लिखा है लीस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। हाँ हाँ अब हमें मैनुअली तो यहाँ दिख गया हमें कि दो ही हैं हमारे पास ऐसी टेबल में हाँ हाँ जो लिस्ट हैं। तो हमने तब तो लिमिट यूज कर ली कि दो लिख लिया, छोटी टेबल है। हाँ। पर जब टेबल बड़ी होगी तो वहां पे हम लिमिट तो यूज नहीं कर पाएंगे मैनुअली, कि कितना काउंट करेंगे कि कितने लिमिट पे आ रही है लिस्ट करके। एक मिनट बताता हूँ। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तुम्हारा क्वेश्चन, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, बता देना मेरे को देवेश इफ आई एम रॉन्ग। देवेश का कहना यह है कि यहाँ पर तो छोटी सी टेबल थी, हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया, पता चल गया ऐसे दो प्रोजेक्ट नंबर हैं जिनमें सिर्फ 2 एम्प्लॉय थे, तो हमने लिख दिया लिमिट इज 2। दो ही रिजल्ट देखने हैं, उन्हीं दो में मिनिमम है ना। अगर ये 100 रोज होती, मैं कब तक देखता रहूंगा मैनुअली। टेल मी देवेश इफ आई एम रॉन्ग, यही कहना चाह रहे थे, यही समझ रहा हूँ मैं। हाँ जी सर। अगर ये एक वाकई टेबल होता जिसमें मे बी इसमें 5 लाख रोज हैं, और उनमें से 1000 रोज ऐसी हैं जहां पर एम्प्लॉय काउंट 2 ही हो रहा होता, समझो, मैं कब तक देखता रहूंगा और कहाँ बोलूं कि इसको इतने पे लिमिट कर दें। उसका क्वेश्चन ऐसा है। तो देवेश उसका भी इंतजाम देखेंगे अभी नेक्स्ट सेशन में। अभी आप लोगों का ज्वाइन वगैरह हुआ है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं भी देने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। ठीक है सर, वो बस इसलिए पूछा ना, आपने लीस्ट नंबर ऑफ हाँ एम्प्लॉयज यस, लिखा था ना वहाँ पे। अंडरस्टूड एंटायरली। सी आई डिड नॉट वांट टू फ्लड यू विथ ऑल दीज क्लॉज, एंड अभी आप लोगों का एक पूरा सेक्शन नेस्टेड क्वेरीज का बाकी है, तो मे बी इन अनदर लेक्चर वी विल कंप्लीट दैट। उसमें हम इसी बात जो आप कह रहे हो बिल्कुल उसी का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे, उसी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम इस तरह की हो, तब हम क्या करेंगे। तो नेस्टेड क्वेरीज आर ऑल अबाउट दैट प्रॉब्लम। ठीक है जी, लिमिट क्लॉज यहाँ तक समझा।
So let's keep it till here itself for today. If there is any further question, you can ask. I'm turning off recording for now, but questions are very welcome if there is any.